मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। इन दिनों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान बैक टू बैक फिल्में लेकर आ रहे हैं। जहां एक तरफ वो इस साल ईद के मौके पर भारत लेकर आने वाले हैं, तो वहीं साल के अंत में दबंग 3 लेकर आएंगे। हाल ही में सलमान अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म नोटबुक के प्रमोशन में पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सभी को एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी एजुकेशन। जिसने ये हमला किया, अगर वो पढ़ा लिखा है भी तो उसे पढ़ाने वाले गलत थे। पढ़ाई ही इस मामले का असल इलाज है। तो देखा आपने पुलवामा हमले को लेकर सलमान ने क्या कुछ कहा। बीते दिनों जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था, तो पूरा बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश भी सदमे में आ गया था। इस मामले पर भले ही सलमान ने लगभग काफी टाइम बाद अपना बयान दिया हो, लेकिन आपको बता दें कि सलमान शहीद हुए उन जवानों की आर्थिक मदद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सलमान ने फिल्म नोटबुक से पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का गाया हुआ एक गाना भी हटवा दिया था। वैसे बात करें इस फिल्म की, तो बता दें कि फिल्म नोटबुक की कहानी भी कश्मीर के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कश्मीर के नौजवानों के हाथों में उन्हें उकसाकर बंदूकें पकड़ा दी जाती हैं और अंत में वो इसे छोड़ते भी दिखेंगे। बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है और इस फिल्म से सलमान दो नए चेहरे प्रनुतन बहल और जहीर इकबाल को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। That was the biggest hit of the year, and that was during Bachchan's prime. So it did more business than any of his films. So content has always worked. So I believe this is not a new thing. So it's a different kind of launch. Also, it's a like you said, it's a different love story. Zahiro, were you a little bit nervous at all? I saw you getting a little nervous. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपने नाखून चबा बैठोगे. Yeah, I'm slightly nervous. It hit me today morning that the world is going to see my work that I've done. They know how good or bad you are at what you do. So it's nerve-wracking. तो अभी जो तुमने सबके सामने देखी है, वो फील आ रही थी क्या? Were you able to be non-objective and say मैंने ठीक काम किया है? No, I personally feel I did a good job. That's great. Salman sir, are you able to be non-objective, or you know, when you're watching the stuff that you are producing and you are making, ऐसा हो सकता है कि okay, I can be non-biased? To kill him. I have to kill him. If I don't like something, I ask him to do it over and over again. Really? Now, now there was one dance step that he could not get. So I had to stand up, and just imagine, I had to stand up and show it to him. लेकिन वो थोड़ा सा भलता था. So I had to stand up and show him the dance step. Then he's gone and he's rehearsed about 4-5 hours with him in the studio. Then he's gone, he's rehearsed it all night and he's gone and done it. So he's very hardworking. You know what we're going to ask you to do now, ना? ये जो डांस स्टेप इतना मुश्किल था, जो शायद आ नहीं रहा था, डांस स्टेप देखना है आपको? नहीं अभी पर्दे पे देखो, पता नहीं खराब कर यहाँ पे तो. Thank you. Listen. This is now अभी दरवाजा खुल चुका है. अब हर कोई तुम्हें हर चीज पे, you know, there'll be. It's not a step that was hard. It was a whole long sequence. Okay, so firstly, very welcome to you both. Thank you very much. Thank you. Film Notebook, you know, it's a most awaiting film this year, and people are loving your trailer. Yeah, people awesome. are loving the trailer also. And since it's your debut film, tell us something. You know, we know about the character somewhere with the trailer, but tell us something about your character you are playing. So I'm playing a character called Kabir, who is slightly lost in life. He's been through a few incidents in his life when he was young and in his youth, which have traumatized him, I would say, which have made them the person he is today, and he can't seem to get over it. And he's a slightly quiet, Sarmasa guy who doesn't like crowds, speaks less, and he goes to a school to teach from where on his life changes. Yeah, I think Firdaus is a very mature girl. She's very pure, very stubborn at the same time, and opinionated. She speaks exactly what she believes in, and she's not afraid. Loves kids, and very good heart, I would say. Okay, so as of now, what I know is that आपने पहले आर्मी ऑफिसर थे, फिर उसके बाद में आपने स्विच किया है टीचर के रोल में, और फिरदौस आप ऑलरेडी फिरदौस जो है वो ऑलरेडी टीचर के किरदार में नजर आई. जी. तो कैसे कुछ प्रिपरेशन रही इस रोल के लिए, खास तौर पे आपकी, क्योंकि क्या आर्मी वगैरह के सीन शूट्स की? जी, तो
हमने 4 महीने की वर्कशॉप्स की जिसमें सब कुछ आ गया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर मुझसे बहुत अलग है। वो ना तो मेरी तरह चलता है, ना तो मेरी तरह बात करता है। उसके ट्रेड्स, उसकी जो पसंद है ना पसंद है, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए 4 महीने की वर्कशॉप्स बहुत ही ज़रूरी थे, और आई थिंक हमें जो अचीव करना था वो 4 महीनों में हमने कर दिया। क्योंकि जिसने भी देखा है पिक्चर उनको लगता है कि हाँ, ये इसमें ज़हीर बिल्कुल नहीं है, ये कबीर ही है। और हाँ, मैं आर्मी के लिए हमने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है, छोटा पोर्शन है। लेकिन हाँ, मैंने बहुत आर्मी ऑफिसर से बात की जब मैं कश्मीर में था, उनसे कई चीज़ें सीखी। और जैसे बेसिक्स, जैसे कि बंदूक कैसे पकड़ते हैं, अगर वो बंदूक के साथ भाग रहे हो तो कैसे भागेंगे, वो सब चीज़ें। हाँ, आई थिंक क्योंकि मैं टीचर प्ले कर रही थी तो मेरे एक्टिंग कोच जो है मिस्टर हेमंत खेर हमेशा कहते थे कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, सो यू नो टॉक अबाउट हर, राइट अबाउट हर, फिरदौस's childhood, फिरदौस's favorite color, how would Firdaus react, what was her relationship with her Ammi and Abu, so stuff like that which was not integral to the screenplay as such. लेकिन I think that's why I'm so connected to Firdaus, क्योंकि ऐसे लगता है मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, right from her birth to her youth to her teaching to everything. तो उसके लिए हाँ, मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी फिरदौस से काफ़ी अलग थी। इतना ठहराव नहीं था। आई थिंक थोड़ा आ गया अभी वो प्ले करके, वो इनकॉर्पोरेट करके। एंड जनरल चीज़ें जैसे थोड़ा फोकस लाना अपने आप में, मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग करना, ये बेसिक्स जो हैं, दैट इज़ समथिंग दैट हेमंत सर रियली वर्कड ऑन विद बोथ ऑफ अस, आई थिंक। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आर्मी की प्रिपरेशन आप पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत सी फिल्में देखी। नितिन सर ने मुझे 4-5 फिल्में दी थी इन पर्टिकुलर, ये दिखाने के लिए कि क्योंकि मेरे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन था कि आर्मी ऑफिसर है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसी बात करेगा। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आप आर्मी ऑफिसर को एक सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे यस सर, जब आप मे बी एक ड्राइंग रूम में उनके साथ बैठ के बात कर रहे हो। तो वो नोशन तोड़ने के लिए नितिन सर ने मुझे काफ़ी पिक्चरें दिखाई, ताकि मैं नॉर्मल प्ले कर सकूं। क्योंकि मैं जब नॉर्मल सीन्स में भी चल रहा था, मैंने कहा कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ तो मैं ऐसे चलूँगा, एकदम स्टिफ। तो वो है नहीं कि जब आप ऑफ ड्यूटी हों तब भी आप ऐसे ही हमेशा, वो एक पॉइज है उनमें, लेकिन उतना नहीं जितना मैं कर रहा था। वो तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी पिक्चरें दिखाई। ओके, बीइंग अ डेब्यू फिल्म, जब हम डेब्यू करने जाते हैं तो हमेशा एक दिमाग में जहन होता है कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, या फिर थोड़ा सा एक प्रेशर टाइप का कह सकते हैं हम होता है। तो क्या नोटबुक वो फिल्म है जिसके साथ में आप दोनों डेब्यू करना चाहते थे, या जैसा कैरेक्टर आप चाहते थे? जी, आई थिंक मैं ये दोनों के लिए बोल सकता हूँ कि हम दोनों को वो कोई नोशन नहीं था कि हमें ब्यूटी शॉट्स चाहिए, या तो मुझे एक बॉडी शॉट चाहिए, गाना चाहिए जहाँ हम नाइट क्लब में नाच रहे हो। हम दोनों को एक कंटेंट बेस्ड फिल्म चाहिए थी, और वो हमें मिली। और मैं हमेशा ही कहती हूँ 1000 times over I would choose Notebook anything so. ओके, सो ज़हीर आपसे जानना चाहेंगे, यू नो नॉट बीइंग फ्रॉम बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, और कुछ और भी था? So I was in the construction business, but I always had the filmy keeda. I always was very fond of drama, dancing, all of that. I was always a part of that in school and college, but I never thought I would leave my business and go and audition and try to be in the movies. I thought कि worst case scenario, एक दिन my friend and me used to joke कि खुद पैसे बना लेंगे, खुद एक पिक्चर प्रोड्यूस कर लेंगे, वो डायरेक्ट कर लेगा, मैं एक्ट कर लूँगा। लेकिन हाँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको परस्यू करूँगा। मस्ती में वो मन में हमेशा चाहती कि काश एक्टर बन जाता, काश कर लेता, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, लेकिन जो होना है वो होता ही रहता है। ओके प्रणीतन, आपका जब सलमान खान सर ने फर्स्ट टाइम ट्विटर पे ट्वीट करते हुए आपकी फोटो, यू नो सबको पता है कि आप होंगी उनकी हीरोइन, तब लोगों ने काफ़ी आपको नूतन जी यानी आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ में बहुत कंपेयर किया और कहा कि आप उनकी झलक है। तो क्या वहाँ कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना, यू नो, क्योंकि नूतन जी को इतनी बड़ी एक्टर तो आप पर थोड़ा बहुत प्रेशर? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इसको प्रेशर के तौर पे लेना चाहूँगी। आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और
अच्छा लगता है कि इतने महान कलाकार हैं हमारी फैमिली में, तो take it as an asset, be positive about it, that I have this beautiful responsibility on my shoulders, and what am I going to do about it? I'm just going to better myself at my craft and up my game all the time. So no, I take it as an encouragement कि इतनी बेहतरीन lineage है और legacy है, तो काम करो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो, उनको प्राउड फील करवाओ, डोंट लेट देम डाउन इन एनी विच वे, बिकॉज आई फील कि प्रोफेशनली तो वो हैं ही बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है इतनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन सब ने अपनी पर्सनल लाइफ्स भी जी हैं, तो वो मेरे लिए मेरी नज़रों में बहुत बड़ी बात है. सो या आई डोंट टेक इट एज प्रेशर, आई डोंट my passion to be an actor and my dream to be an actor is too big, so I don't get bogged down. I know what I want for myself and I'm ready to work very hard for it. So नहीं, responsibility है और अच्छी है, तो खुश रहना चाहिए उसके बारे में.